Hi guys, I realize that it sound a bit overblown when I say 50 questions in the UPSC prelims examination can be solved using three levels of elimination. But let's understand the math behind it. Take up 2024 prelims paper or 2023 prelims paper. You'll find that irrespective of how well prepared you are, irrespective of how senior candidate you are, the number of short questions that you will be able to solve in your first iteration is 30, and even 30 is a conservative number that I've taken, guys. This is an example of such a short question. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? अब यहां पर सीधे सीधे आर्टिकल 21 आपको मार्क करना है, नो सेकंड थॉट, नथिंग. देन देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस which are skippable. Now, there are less than 20, but conservatively, I have marked 20 questions that you will be skipping. अब 20 आप skip करोगे मतलब आप 80 ही attempt करने वाले हो. But in the real exam, you need to attempt more. You need to attempt more than 85. But still, conservatively, 20 हम मान भी लें, आप उनको skip कर रहे हो. Now, this is an example of such skippable questions falling into the second category. Army, Air Force, Navy, equivalent designations. Bilkul, out of the blue, most of the students could not attempt it. Most of the students skipped it. So guys, 30 short conservatively, 20 skippable conservatively. So on a conservative note, we have 50 questions left. And in these 50 questions, we need to use elimination at three different levels. And when we speak of these 50 questions and using elimination at the, three different levels, the first level is the most basic and it is commonly used by most of you guys. ठीक है, जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा. लेवल 2 इज वेयर यू नीड टू डिराइव आंसर्स. ठीक है, आपको आंसर्स पता नहीं है, बट देन एंड देयर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल इन द रियल टाइम यू डिराइव द करेक्ट आंसर. And level 3, which is the most abstract of the levels of elimination logic, whatever you call it, is identifying traps and hints. Here you develop an instinct with more and more practice as to how the paper setter thinks and sets traps and hints accordingly. Now guys, let's take a few examples so as to understand what is the differentiation between level 1, level 2 and level 3 elimination that we use and we need to use in the prelims paper so as to maximize our score. Now level 1, balance of probability. नाम जरूर नया लग रहा होगा, लेकिन most of you have already used it. समझते हैं कैसे? Now Aditi and Deepti, I've unmuted both of you guys. गाइस, 2024 का एक क्वेश्चन आपके सामने है, 2023 का एक क्वेश्चन आपके सामने है. 24 वाला क्वेश्चन बोलता है कि बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव हैज पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इस 2024 वाले क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली पता है क्या कि बटरफ्लाइज में पॉइजनस होते हैं क्या, फिश में होते हैं क्या, फ्रॉग्स में होते हैं क्या? बोथ ऑफ यू, अदिति एंड दीप्ति. No, sir, we can't say कि all of them are poisonous or not poisonous. सबके बारे में एक साथ बात नहीं कर सकते. ओके, दीप्ति. Same. सेम. अच्छा, still if I ask you to give me an answer, mark an answer, what would you mark? All three. So, C. ठीक है, एक स्माइल के साथ आप बोल रहे हो ऑल थ्री. ठीक है. सो गाइस, लाइक दीप्ति, इज द रीजन बिहाइंड योर स्माइल दिस कि आंसर पता नहीं है फिर भी आप आंसर सही मार्क कर रहे हो? इज दैट द केस? Yes, sir. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं. 2023 में आई विल कम टू यू पूनम. पहले लेट्स बी डन विद दिस फ्यू स्लाइड्स, देन आई विल कम टू यू. 2023 वाला ये क्वेश्चन है. अगेन बोथ ऑफ यू, दीप्ति एंड अदिति. Mushrooms. Some mushrooms have X properties, some have Y properties, some has Z properties, and some have A properties. ठीक है. Both of you, do you know for sure whether Sir. even four statements are right or wrong? Sir, we can't say for sure. There is a probability that some, focusing on the word some, अच्छा. can have all these properties जो चारों ऑप्शन में बोला है. अच्छा, क्या मार्क करोगे आप? All four. ओके. दीप्ति, आपको पता है क्या? So we generally don't know
even the environmentalists don't know. They have. अच्छा, even the environmentalists don't know. We ठीक है, cannot say for sure. अच्छा. So yeah. So the case of probability, if we consider that, then all four are considered अच्छा, right. guys, isn't this interesting? At one hand, you are saying, Dipti, ki even the environmentalists would not know this. Still, you are marking the correct answer with confidence and with a smile. ठीक है, and that Yeah. smile again is precisely because there is a contradiction going on here. आपको आंसर पता नहीं है, फिर भी आप दोनों ने इन आंसर्स को सही मार्क किया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल, गाइस, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक भी अगर इसमें से स्पीसीज मिल जाती है, बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग्स, जो कि पॉइजनस है, तो फिर यूपीएससी को बच्चे कोर्ट तक लेकर चले जाएंगे एंड द एग्जामिनर वुड नॉट वांट दैट टू हैपन. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन, अगर एक भी मशरूम ऐसा मिल जाता है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी है और दूसरे प्रॉपर्टीज है, तो अगेन द पेपर सेटर वुड नॉट वांट the case to become contentious, the case to go to court, right? So आपको किसी भी given element के बारे में पता नहीं है, still you are ready to mark the correct answer very very confidently. ठीक है? So guys, this is level one of usage of elimination and logic. Now this is strictly not elimination, this is use of logic, common sense. और हमने पहला वाला देखा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी अंडर लेवल वन. अब लेवल वन के ही अंडर में लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड एलिमेंट, द नंबर गेम. ठीक है, अगेन आप सब लोग इसको यूज करते हैं, समझते हैं कैसे. नाउ लेट मी कम टू अविनाश, आई विल कम टू यू. पहले कुछ स्लाइड्स हम कवर कर लें, आपके मैं सवाल लूंगा. नाउ लेट मी कम टू प्रकुल एंड अनिमेश. Now, Prakul and Animesh, you have two questions asked in prelims 2024 before you. पहला क्वेश्चन बात करता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में, और दूसरा जो क्वेश्चन है, इट स्पीक्स अबाउट यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली. ठीक है, प्रकुल एंड अनिमेश, टेल मी, डू यू नो द करेक्ट आंसर फॉर श्योर? दोनों भी क्वेश्चन में से आपको पक्के तौर पर आंसर पता है क्या? नो सर, स्टार्टिंग वाला 18th लोकसभा आ गया, दैट्स कोई नहीं पढ़ता वो. अच्छा, 18th लोकसभा आ गया तो आप नंबर आ गया इसलिए आप एलिमिनेट कर रहे हो? नहीं, एलिमिनेट नहीं, इसलिए आई एम नॉट श्योर, इसलिए नहीं पता, ऐसे कह रहा था. अच्छा, आई एम नॉट श्योर. अच्छा, अनिमेश? सेम सर, मैं तो याद ही नहीं यार, मेरे को 15 ईयर भी नहीं याद है कि 10 ईयर था या 15 ईयर. ठीक है. सो गाइज, अब यहां पर आप जैसे बोल रहे हो कि सर एक स्टेटमेंट वन में एक नंबर है 18, स्टेटमेंट टू में दूसरा नंबर है 15. सो आगे आज हम सीखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव टू नंबर्स इन द सेम क्वेश्चन. लेकिन कमिंग बैक टू दिस सेम क्वेश्चन, अदिति, यू आर स्टिल अनम्यूटेड, एंड प्रकुल, इफ आई आस्क यू, even Animesh, if I ask you to give me one definite answer for both the questions, क्या आंसर दोगे आप मुझे? सर अबाउट 81 जब ये न्यूज़ में आया था तो आई हैव सीन दैट, तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट सेकंड एंड थर्ड, है ना? एंड सो इधर इंट्यूटिवली आई विल गो विथ सी. अच्छा, Aditi, now this is very interesting. You are saying that you are pretty sure about statement 2 and statement 3. ठीक है, so 2 and 3 have to be there in the correct answer. So option A and option C both have 2 and 3. सर तो फिर उधर रिस्क लेनी होगी वन के लिए. रिस्क लेनी थी तो आपने 1 को एलिमिनेट किया. आपका थॉट प्रोसेस क्या था? Why did you eliminate statement 1? सर बिकॉज आई थॉट कि उसमें लिखा हुआ है कि 15 अगर एक्ट बन देगा उसके बाद 15 ईयर्स बाद आएगा. बाय दैट लॉजिक आई थॉट कि 18th लोकसभा तो नहीं ही होगा. अच्छा, कंपैटिबिलिटी टेस्ट आप लगा रहे हो, चलो. और एक स्टेप आगे जाकर आप रीजनिंग लगा रहे हो. बट इज वन रीजन द नंबर, देयर इज अ गिवन नंबर इन स्टेटमेंट 1, वाज दैट अ रेड फ्लैग फॉर यू? यस सर, इट इज़ वेरी मच पर्टिकुलर. It is very much particular and it is a number. ठीक है, that's what you're saying. What about you, Prakul? The same sir, first statement sir, नंबर है 18th लोकसभा. ये ऐसा फैक्ट है जो यूपीएससी डजंट expect us to remember this कि 18th है 17th है. I think so. अच्छा, UPSC doesn't expect us. Fine. And the next question 96 जो आपके सामने है, guys, give me one definitive answer.
सर स्टेटमेंट सेकंड में मैंने 2040 देखा, तो दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ रेड फ्लैग फॉर मी। Why is 2040 creating a red flag for you? सर बिकॉज 2040 तक आप कंप्लीटली यू कांट अचीव दीज गोल्स। ज़्यादातर जहाँ मैंने पढ़ा है वो या तो 2070 की बात करते हैं, या दे टेक सम लेटर ईयर्स, या फिर वो 50% की बात कर रहे हैं तो 2030 या 2040 में ख़त्म कर रहे हैं। सो ये मेरे को थोड़ा रेड फ्लैग लगा है कि ऐसे कार्बन न्यूट्रलिटी सिर्फ 10-15 सालों में कैसे करेंगे लोग। ठीक है, what about you, Animesh? Sir, same. I think it was 2050 and some countries had mentioned 2045 if I'm not wrong. But 2040 किसी ने नहीं बोला था and 2030 is the first set of targets. So you're So, eliminating statement 2. yes. ठीक है, what would be your answer? See. जी सर। सी ही बचता है अगर आप स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करते हो। यस सर। फाइन। सो गाइज, आपने बाकी के और थॉट प्रोसेसेस भी लगाए, कंपैटिबिलिटी टेस्ट और दूसरे आपके एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आपने करने की कोशिश की, बट वन कॉमन थ्रेड बिटवीन बोथ द क्वेश्चंस इज द नंबर्स। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर 18th लोकसभा, सेकंड क्वेश्चन में न्यूट्रलिटी बाय 2040। These were red flags for you precisely because these were numbers and you were more inclined to eliminate these. Am I correct so far? Yes, sir. यस यस। Fine. So guys, uh, even without our knowing it, we play the number game and कहीं ना कहीं numbers के बारे में हमारा एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है यूपीएससी सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर को लेकर। नंबर अगर आता है तो वो गलत होता है, ऐसी हमारी धारणा बनी हुई है। हालांकि आगे हम सीखेंगे कि नॉट ऑल नंबर्स आर रॉन्ग, विल बी मेकिंग दिस डिफरेंशिएशन बिटवीन arbitrary numbers and reasonable numbers. But these were two examples of level 1 usage of elimination जो हम सब लोग करते हैं बिना जाने कि we are using elimination and logic. First example we took of balance of probability. Second example we took of number game. Now let's jump to level 2 at which we need to use elimination in order to attempt more questions and maximize our score in the prelims paper. पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं वर्ड एसोसिएशन का। अब इफ आई आस्क यू गाइज, अभिनव, अनमोल, Yes, sir. guys, three of you please tell me what do you understand by the word भावना। आई होप देयर इज नो भावना इन दिस मीटिंग। क्या मतलब होता है भावना का? Feeling. Emotion, sir. Emotion. इमोशन, Yes, फीलिंग्स। sir. इसके अलावा और क्या हो सकता है? Intention. इंटेंशन। अच्छा, इमोशन, फीलिंग, इंटेंशन। गाइस प्लीज पे अटेंशन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट लर्निंग हियर। भावना का मतलब तो आपने बता दिया, फीलिंग, इमोशन, इंटेंशन, दीज आर द ब्रॉड इंटरप्रिटेशंस ऑफ योर्स। ठीक है, टेल मी सद्भावना का क्या मतलब हो सकता है ब्रॉडली? Pure Good intention. intentions, Good good intention. feelings. गुड इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस। ठीक है प्रतीक्षा, आई कैन सी यू हैव कम आउट ऑफ द लाइब्रेरी। आज का सेशन कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? नहीं सर, एक्चुअली इट्स यूजुअली वेरी chaotic outside the reading area. आज थोड़ा बेटर है। अच्छा, बताओ सद्भावना का क्या मतलब हो सकता है? Good intention. गुड इंटेंशन, The act done with good intention or to help someone maybe. टू हेल्प समवन। ठीक है, द एक्ट डन Hmm. टू हेल्प समवन। सो गाइस, प्रतीक्षा good का intention. इंटरप्रिटेशन है कि आपकी मंशा अच्छी है, आपका इंटेंशन अच्छा है और आप किसी की मदद करना चाह रहे हो। ठीक है, डू आई गेट इट राइट सो फार? प्रतीक्षा, अदर्स? Yes, sir. ठीक है। Yeah. So guys, this was a question asked in prelims 2024 and the question was operations undertaken by the army towards upliftment of the local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called. Now let me ask, अनमोल, आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता है क्या? डेफिनेटली नहीं पता सर, बट यही जो भी आपने वर्ड एसोसिएशन कराया उससे, मतलब मैंने दिया था एग्जाम तो सर मैंने ऐसे ही किया था जैसे आपने बताया ना, वैसे ही करके ऑपरेशन सद्भावना करके आया था। सद्भावना करके आए थे। ठीक है, तो हाँ। लेवल 2 तक आप सोच पा रहे थे, यू आर एबल टू ब्रेनस्टॉर्म एट लेवल 2 ऑफ एलिमिनेशन। यस सर। जिज्ञासा, आपको इसका आंसर पता है क्या?
सर आंसर तो मुझे पता है, बट अगर अदर देखा जाए तो सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, सद्भावना एंड मदद में। ठीक है, हम उस पर आएंगे, कंफ्यूजन को क्लियर भी करेंगे। आई वांट टू नो कि किसको आंसर इसका नहीं पता है। प्रतीक्षा, आपको पता है इसका आंसर? Yes, I've read it somewhere. So maybe PYQ is one. यू हैव रेड इट समवेयर, पीवाईक्यू में पढ़ा है। प्रखर, अजय, डू यू नो दिस आंसर फॉर श्योर? सर फिक्स तो नहीं पता है, लेकिन सी और डी में से लग रहा है, मतलब सी सीओडी में लग डी भी रहा हो है। सकता है, ठीक है, बिकॉज हाँ, कंप्लीट योरसेल्फ। क्योंकि सर बेसिक नीड को फुलफिल करने की बात हो रही है, तो फिर मदद भी हो सकता है उसमें। ठीक है, सो गाइस, सो फॉर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि जिनको इसका आंसर नहीं पता, they have straight away eliminated option A and B. So you have already started the process of derivation. You have started to derive the correct answer. चार में से दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो, मतलब 50-50 सिनारियो पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आपको पक्के तौर पर नहीं पता, राइट? अब कुछ बच्चे हैं जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बीच में फंस रहे हैं। फाइन, अब ये हम एग्जांपल ले रहे हैं लेवल 2 ऑफ एलिमिनेशन का, ठीक है? एंड दिस एग्जांपल इज पर्टिकुलरली अंडर द हेड ऑफ वर्ड एसोसिएशन, वर्ड प्ले। क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी towards upliftment of the local population in the remote areas to include addressing of their basic needs is called, ठीक है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सद्भावना एंड मदद? आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सद्भावना और मदद में क्या फर्क है, फिलोसॉफी वाइज, इमोशन वाइज, डिफरेंशिएटर क्या है दोनों में? सर हेल्प हो गया, मदद हेल्प हो प्रॉपर, गया। और सद्भावना हो गया, सद मतलब गुड, भावना मतलब फीलिंग, गुड गुड फीलिंग, गुड इंटेंशन, गुड विल। ठीक है, आप सद्भावना किसके मदद में साथ, एक्शन आ रहा है। सद्भावना आप किसके लिए रखते हो और मदद आप किसकी करते हो? सर जो नीडी होता है उसकी मदद करते हैं। सद्भावना अगर कोई ट्रेजेडी के थ्रू जा चुका है तो उसके साथ हम सद्भावना रख सकते हैं। जो नीडी होता है हम उसकी मदद करते हैं, ठीक है? तो और मदद में एक सद्भावना में ऐस ट्रेजेडी की ही जरूरत है क्या? बिना ट्रेजेडी के हम सद्भावना नहीं रख सकते? गुड हाँ इंटेंशन। रख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं। अगर कोई जैसे इसमें लोग रिमोट एरिया जा रहा है, रिमोट एरिया जा रहा है, अंडर डेवलप, बैकवर्ड है कोई, उसके साथ आप सद्भावना रख सकते हो, कंपैशन रख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ये समझेंगे जैसे हम सेशंस में आगे बढ़ेंगे। इफ द इंडियन आर्मी, नाउ हियर आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व्ड, if Indian army or India as a nation would have helped some other nation, say for example in case of a natural disaster, earthquake or something, जैसे हमने नेपाल में मदद भेजी, हमने कई जगहों पर मदद भेजी है इससे पहले, then terms like मदद, ठीक है, terms connoting friendship are used, ठीक है, because those have very particular connotations, implications। और जैसे अदिति ने कहा, मदद का मतलब हेल्प करना होता है। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर ओन कंट्री, अपने ही देश में अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, देन अमंग द गिवन टू कीवर्ड्स सद्भावना एंड मदद, सद्भावना टेक्स प्रेसिडेंस। अब शुरुआत में थोड़ा सा ये एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है कि सर सद्भावना कैसे प्रेसिडेंस ले रहा है, मदद भी तो हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है गाइज। व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक अ फ्रेमवर्क, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एलिमिनेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज ओनली विद प्रैक्टिस दैट विल अंडरस्टैंड, विल कम टू नो कि किस तरीके से नॉट ओनली वर्ड एसोसिएशन बट इन जनरल आंसर्स डिराइव करना होता है। लाइक जो बच्चे अभी अनम्यूटेड है, प्रकुल, प्रतीक्षा, अनमोल, जिज्ञासा, डज इट मेक सेंस गाइज व्हेन आई से कि सद्भावना Yes, sir. इज लाइकली टू Yes, टेक sir. प्रेसिडेंस ओवर मदद, क्योंकि इंडिया के अंदर ही हो रहा है, आर्मी के द्वारा हो रहा है। Yes, sir. So मदद creates some kind of एहसान कि मैंने मदद करी एहसान, तुम्हारी। वेरी गुड, वेरी गुड। Also, अगर मदद मदद है तो फिर वी कैन से दैट कि अगर कोई डिजास्टर में है या फिर ट्रबल में है तब मदद करेंगे, बट देन इधर इट्स सेइंग बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, सो दैट कैन बी वी कैन कोरिलेट इट विद सद्भावना। Have you ever seen an army operation or any operation
इन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट जहां पर हम बता रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आप पे एहसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ओ है. ओके द वर्डिंग, द नॉमेनक्लेचर ऑलवेज इज प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव. ठीक है. एंड सद्भावना फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी. क्लियर? राइट. So guys, this is an example of level 2 usage of elimination. अब यहां पर level 2 में हमने word association का reference देखा. level 2 में ही हम reference देखते हैं feasibility test का. So guys, if I ask you कि as a taxpayer, should I have the ability or should I have the decision power, the power to decide the amount of tax I should be paying, the slab under which I should be falling? Should I have that power as an individual taxpayer? Like मैं ही खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना टैक्स देना है और किस स्लैब के अकॉर्डिंग देना है? नो सर. नो. शंकर? नो नो सर. नो. आप दोनों नो बोल रहे हो, क्यों? Why should I not have that power? So because then that as per that logic, of course the taxpayer would want to pay less tax. So अपना Okay. मतलब उस हिसाब से वो he'll act. ठीक है. शंकर, यही बोल रहे हो तुम? जी जी सर, जो हम देना चाहेंगे तो वो तो हम हमारे पास से जो पैसा देना चाहेंगे तो हम ही देना चाहेंगे, फिर कंट्रीब्यूटेड हो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे हो? So guys, in फिर other ये words, are you saying कि if I have the power to decide how much income tax I should be paying and under which slab I should be falling, then there would be anarchy and the taxation system itself would not be able to operate. In other words, it won't be feasible. Am I getting you right? Correct, sir. Right. So on this note, guys, level 2, second category, feasibility test. This was a question asked in prelims 2024. वो क्वेश्चन बोलता है कि with reference to corporate social responsibility CSR rules in India, consider the following statements. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. Statement 2. CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. Now, Aishwarya, शंकर, मानसी, अमरकांत, आप में से किसको इसका आंसर पक्के तौर पर नहीं पता है? पीवाईक्यू देखा होगा तो अलग बात है, लेकिन पहले से पक्के तौर पर नहीं पता है या नहीं पता था? अमरकांत को नहीं पता. ठीक है. नहीं. ऐश्वर्या, सब पता है. पीवाईक्यू देखकर पता है क्या? नहीं, वैसे लॉ मतलब CSR के बारे में पढ़ा है तो इसलिए भी पता है. ठीक है. शंकर? नहीं पता है सर. नहीं पता है. मानसी? तो पता था पहले सर. अच्छा, पता था. सो अमरकांत और शंकर, मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहता हूं. आपको नहीं पता कि CSR के प्रोविजंस क्या है. ठीक है. लेवल 2 यूजेज ऑफ एलिमिनेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. गिव मी अ डेफिनेटिव आंसर, बोथ ऑफ यू. Sir, I will eliminate option second because there is do not specify minimum spending की बात कर रहे हैं. ठीक है. इस वजह से. तो क्या गलत हो गया उसमें? अगर CSR स्पेसिफाई नहीं करेगा मिनिमम स्पेंडिंग तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर सर मिनिमम स्पेंडिंग स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो फिर सर वहाँ स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं हो पाएगा सर. अच्छा, मानक नहीं बन पाएगा. मानक नहीं बन पाएगा. शंकर, आप क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जो सेकंड वाला है ना, जो एलिमिनेट करके फर्स्ट ऑप्शन मैं चूज करना चाहूंगा, क्योंकि जो सेकंड वाला है मुझे CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके जो साइड इफेक्ट कंट्री पे एनवायरनमेंट पे आ रहे हैं उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हो तो आप फिर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो. और ठीक है. मतलब कंट्री. अंडरस्टूड गाइस. इन अदर वर्ड्स, अमरकांत और शंकर, am I getting it right कि आप ये बोल रहे हो कि if CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities, then if I am paying I am just spending 100 rupees और मैं बोल रहा हूं कि मैंने CSR में खर्चा कर दिया as per the law, मैंने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया. एक तरफ तो मैं thousands of crore कमा रहा हूं as a corporate entity और यहाँ पे खर्च सिर्फ 100 रुपीज कर रहा हूं. That won't make any sense. जैसे जैसे अमरकांत ने बताया, एक मानक होना चाहिए, एक बेंचमार्क होना चाहिए. एक्स अमाउंट आपको स्पेंड करना ही होगा इन अकॉर्डेंस, इन कॉन्सोनेंस टू योर प्रॉफिट्स.
This is what you're saying, Amarkant, Shankar? Yes, sir. Statement 1, CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. आप इसको सही मार्क करना चाह रहे हो. Why? Sir, because because there are rules, and rules will definitely specify something. And कंपनी को डायरेक्ट अगर फायदा मिल रहा है सीएसआर तो सीएसआर हुआ क्यों, कैसे हुआ Very सीएसआर? good, very good. So what you are saying, Mansi, कि एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी अगर मैं अपने ही एम्प्लॉयज पर खर्च कर रहा हूं, इनडायरेक्टली आई एम गिविंग देम पर्क्स, सैलरी बढ़ाने के बजाय मैं उनको पर्क्स दे रहा हूं, उनको रिटेन कर रहा हूं, और ऑन पेपर बता रहा हूं कि मैंने सीएसआर में एक्सपेंडिचर कर दिया. अगेन दैट वुड बी अ सेल्फ डिफिटिंग प्रोविजन if such rules don't exist, right? So can we say, guys, can we say, अब स्पेशली इन केस ऑफ शंकर, अमरकांत एंड अदर फोक्स जिनको इसका आंसर पक्के तौर पर नहीं पता था, आपने फिजिबिलिटी ही प्रूव की. जैसे मैंने पूछा कि एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर शुड आई हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द स्लैब इन विच आई शुड फॉल, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स आई शुड बी पेइंग. आप लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, द सिस्टम विल बिकम इनफिजिबल, राइट? सिमिलरली यहां पर आपने फिजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके स्टेटमेंट 1 को सही माना, स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट किया, और ऑप्शन ए आपने मार्क किया है एज योर करेक्ट आंसर. एम आई गेटिंग इट राइट, गाइज? ऐश्वर्या, अमरकांत, शंकर, Yes, sir. ठीक है. सो गाइज, सो फार वी हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ लेवल 1 यूजेज ऑफ एलिमिनेशन. उसमें हमने 2 रेफरेंसेस देखे, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर गेम. देन वी मूव टू लेवल 2 where we need to derive the correct answer. यहां पर वर्ड एसोसिएशन का एक रेफरेंस देखा हमने, फिर फिजिबिलिटी टेस्ट देखा. Now guys, let's jump to the third level, which is the most abstract, and this you gain mastery over this with more and more targeted practice. इसका एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं. प्रियांशी, लक्ष्य एंड शुभम. गाइज, सबसे पहले ये बताओ कि आपको इसका आंसर पता है क्या? क्वेश्चन ये 2021 में आया था. क्वेश्चन ये है कि विद रेफरेंस टू मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं. पिंगली वेंकैया डिजाइन्ड द ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर. पत्तवी सीतामरैया led the Quit India movement of Andhra region from here. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. And Madame Blavatsky and Colonel Alcott set up headquarters of Theosophical Society first year. Please, let's remember that we are probing level 3 of usage of elimination in the prelims paper. अब अदिति, अदनान, प्रकुल, आप तीनों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या है, ठीक है? Still, if I ask you to give me one definitive answer, what would you give? And even Priyanshi. सर डी तो एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज फर्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी तो न्यूयॉर्क में हुई थी, ये मुझे पता है. और क्विट अच्छा, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. देन क्विट इंडिया मूवमेंट आंध्र रीजन में सीतारमैया ने लीड करा था, ये भी मुझे पता है, तो ये सही हो सकता है. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है. एंड आई कैन से नेशनल फ्लैग शायद महाराष्ट्र में हुआ था. अच्छा, तो मेरे को बीसी में कंफ्यूजन है. क्या आंसर दोगे आप? टेल मी अदिति, आपने आंसर दिया नहीं है, बट इन योर माइंड आर यू मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चूजिंग ऑप्शन बी एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑप्शन सी? सर आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स बी क्योंकि ये मैंने पढ़ा है, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, प्लीज आंसर ऑल्सो बिकॉज हम ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं. बाय दैट लॉजिक आई विल रिस्क इट विद सी. फाइन. नाउ आपने कहा कि अदिति, यू आर मोर इंक्लाइंड टू चूज ऑप्शन बी एंड मोर इंक्लाइंड टू एलिमिनेट ऑप्शन सी. कुल सर, बी को मैं पहले हटाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में भी आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश, बहुत ऑब्वियस है ये, ऐसे यूपीएससी वेरी लिख गुड, देना चाहिए. वेरी गुड प्रकुल. फाइन. क्या मार्क करोगे तुम? सी बचता है. सी और ए भी मुझे शायद नहीं पता, तो ए और सी में से. ठीक है. अब आप में से अदनान, प्रकुल, अदिति, प्रियांशी और कुछ बच्चों को नहीं पता इसका आंसर, ठीक है? एंड इफ आई टेल यू एंड इफ आई आस्क यू, व्हेन यू रेड दिस क्वेश्चन, was
द फर्स्ट इंप्रेशन, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन था उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ. द मोमेंट यू रेड दिस क्वेश्चन, इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, did you felt inclined to eliminate option C, Rabindranath बहुत Tagore ऑब्वियस लग रहा translated Yes, sir. the national anthem ऑब्वियस from लग रहा है Bengali? Obviously, sir. Obviously. Yes, सर sir. इतना ऑब्वियस नहीं देना चाहिए, मतलब मेरे को वही लगा कि तो तो ऑब्वियस तो नहीं. मतलब नहीं नहीं, फर्स्ट yes or no, इंस्टेंस yes ऐसा or no में था. आंसर चाहिए पहले मुझे गाइस. अदिति बोल रही है यस ऑब्वियसली, ऑप्शन सी एलिमिनेट करने का इम्पल्स इम्पल्स आया. फील किया अदिति ने. Guys, you said that the first impulse that came to your mind upon reading this question is that you should eliminate option C. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. This is what the examiner or the paper setter wants you to do. Question क्या पूछता है? With reference to Madanapalle of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश की बात हो रही है. वहां पर एक स्पेसिफिक टाउन है मदनापल्ले, उसकी बात हो रही है. Which one of the following statements is correct? ऑप्शन ए किसकी बात कर रहा है? पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राइकलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर. अगेन अ साउथ इंडियन पर्सनालिटी. ऑप्शन बी पत्तबी सीतारमैया. ठीक है, अगेन अ साउथ इंडियन पर्सनालिटी ऑपरेटिंग इन आंध्र प्रदेश रीजन, आंध्र रीजन. ठीक है, उस टाइम पर आंध्र हुआ करता था. डी मैडम ब्लेवेट्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर. ठीक है, अब हमको पता है कि तमिलनाडु के प्रेजेंट डे तमिलनाडु में उन्होंने ये सेटअप किया था और तब का मद्रास स्टेट. राइट. सो तीनों की तीनों ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, नेविगेटर्स टू साउथ इंडिया. और क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या है? मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश. ऑड वन आउट कौन सा रह जाता है गाइस? व्हाट इज द ऑड वन आउट हियर? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर translated the national anthem from Bengali to English. Now, Rabindranath Tagore, being a Bengali, हमारे मन में ये सवाल आता है कि what business does he have to come to Madanapalle in Andhra Pradesh and translate something from Bengali to English, right? So this is how the paper setter sets traps. इन सेशंस में आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे गाइस, ठीक है, you will be able to identify this level 3 level of traps and hints. ठीक है, as we started here, level 3, avoiding traps, the most abstract level of using elimination. The correct answer here is the same answer which you thought of eliminating the first. सही बोल रहा हूं अदिति? अरे एक्सप्रेशंस तो काफी सही दे रही हो तुम, लेकिन वर्बली बोलोगी तो हाँ सर, आप सही कह रहे मोर हैं. अप्रिशिएटेड. क्योंकि वो दिमाग में ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ज़्यादा काम बंगाल से करेंगे, साउथ में क्यों जाएंगे. ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही आती है फर्स्ट इंस्टेंस में. रिवर्सल ऑफ अप्रोच हो गया. जो सबसे पहले आप एलिमिनेट करना चाहते थे वही सही आंसर है. आर यू एबल टू सी द booby traps that the paper setter has set for you? Yes. देख पा रहे हो? Fine guys. Now guys, this was asked in 2021 prelims. Let's jump to a question asked in 2024 prelims. It had 4 statements. यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि which of the following statements are correct in respect of a money bill in the parliament? Directly jumping to statement 2, a money bill shall not be introduced in the council of states. हम सबको पता है, कॉमन लक्ष्मीकांत यान है. Statement 3, the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject the bill. Again हम सबको पता है, 2 and 3 होना ही चाहिए. Statement 4, amendments to money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. बिल्कुल गलत है, हम सबको पता है. Statement 4 हटा दिया और 2 and 3 होना चाहिए आंसर में. So we are left with option B and option C. But the trap set here by the paper setter is in statement 1. Statement 1 बोलता है Article 109 mentions special procedure in respect of money bill. Now guys, those students who gave this exam, or even those students who didn't give this exam but saw this paper later, did you know about statement 1 for sure? Arshad? सर नहीं पता था और बहुत समय पे बर्बाद कर दिया था ये क्वेश्चन. मतलब सब स्टार्टिंग वो पॉलिटी से ही किए थे और मतलब बहुत देर तक सोचते रहते इस पे कि इसको इंक्लूड करें नहीं करें. मतलब बहुत समय बर्बाद किए थे और बाद में गलत भी हो गया था शायद. गलत हो गया था, एलिमिनेट कर दिया था आपने. ठीक है. अरशद?
सर वो इसमें मेरे को ये पता था कि आर्टिकल 110 है वो मनी बिल के बारे में बताता है, बट मुझे ये नहीं पता था उसका स्पेशल प्रोसीजर सर 109 में है, तो मैंने तो सर 2 और 3 करा था, गलत हो गया था। अच्छा, आपको पता नहीं था तो आपने सीधे एलिमिनेट कर दिया। आपको पता नहीं है मतलब वो गलत हो जाएगा। नहीं सर, मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा था बहुत, तो मैंने 1 और अच्छा, कुछ 1 चूज करना वन था टू आपको। थ्री में। अमंग ऑप्शन बी एंड सी यू हैड टू चूज समथिंग, सो यू वेंट फॉर यस ऑप्शन बी। सर, तो मुझे लगा आर्टिकल 110 होना चाहिए, तो मैंने उस वो सोच के फिर मैंने सर छोड़ दिया उसको। अच्छा, प्रीथा क्या बोल रही हो? सर एक्चुअल एग्जाम में मैंने तो सी किया था क्योंकि मुझे लगा कि 110 आर्टिकल तो पता था कि मनी बिल के बारे में बोलता है, तो मुझे लगा 109 काफी क्लोज है, मतलब बोल सकता है कि वेरी गुड। हाँ मनी बिल के बारे में हो सकता है, तो मैंने सी मार्क किया था। I'll come back to you. I'll come back to you, Pritha. Age. Statement 2, statement 3, we are clear that it has to be part of the correct answer. Statement 4, we are clear that it cannot be part of the correct answer. We have to choose between option B and option C. 2 and 3 only, and 1, 2 and 3. अब यहाँ पर पेपर सेटर ने माइंड गेम कैसा खेला हमारे साथ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। लेवल 3 एलिमिनेशन, लेवल 3 लॉजिक, लेवल 3 कॉमन सेंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द माइंड गेम्स दैट द पेपर सेटर प्लेज विथ अस। स्टेटमेंट 1 में पेपर सेटर ने बोला है आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, आर्टिकल 109 प्रोफेसर साहब को छोड़ के आप में से कौन कौन पढ़कर गया था? सब पढ़ के गए थे बट याद नहीं रहा। अच्छा, सो हियर जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैड नॉट रेड आर्टिकल 109, और जिन्होंने पढ़ा था उनको याद नहीं रहा। बहुत कम एक्सेप्शंस हैं जिन्होंने पढ़ा था 109, वो भी बेयर एक्ट में, लेकिन और फिर उनको याद भी रहा। ठीक है, जब आर्टिकल 109 की बात हो रही है कि इट मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, छोटा सा एक मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर अगर 109 के बजाय आर्टिकल 9 होता तो व्हाट वुड यू हैव डन? वुड यू हैव selected it or would you have eliminated it straightforwardly? सिटीजनशिप का तो वैसे ही हटा देते सर, तुरंत हटा देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 9 तो चलो सिटीजनशिप में चला जाएगा, कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 109 की अगर बात करें, कैन आई से कि पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये 110 हम इतना पढ़ते हैं उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, तो मनी बिल से लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस इसमें होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। पता नहीं है या नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है। कैन आई से सो? यस सर, यस सर, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। नाउ व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस क्वेश्चन अंडर एग्जामिनेशन प्रेशर, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस? आर्टिकल 109 के बारे में पूछ रहा है, मनी बिल के बारे में पूछ रहा है, और पेपर सेटर अच्छे से जानता है कि बच्चों ने मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 110 1000 बार पढ़ रखा है। पेपर सेटर ये अच्छे से जानता है, और जब बच्चे आर्टिकल 109 पढ़ेंगे 110 के बजाय जब 109 पढ़ेंगे, दे विल स्टार्ट doubting themselves, they will go into self doubt, and they will be more inclined towards eliminating article 109 over choosing article 109, क्योंकि जो नई चीजें होती हैं, अननोन चीजें होती हैं, उनसे हमको डर लगता है। ठीक है, like we have never seen ghosts but we are fearful of ghosts, so in this case article 109 was that chosen ghost of the paper setter. So makes sense so far guys? जो भी लोग unmuted हैं, in the examination hall under exam pressure, we would be more inclined towards eliminating article 109. Does it make sense? प्रतीक्षा, प्रीता, अनमोल, जिज्ञासा, अनिमेश, ठीक है। और अगर आप ट्रैप को स्पॉट कर पा रहे हो, यू विल चूज स्टेटमेंट 1। रीजन बीइंग, ट्रैप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गलत स्टेटमेंट दे दिया, गलत फैक्ट दे दिया। ट्रैप का मतलब ये भी होता है कि एक ऐसा फैक्ट दे दिया जिस पर आप भरोसा नहीं करना चाहते। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन हमने देखा, रविंद्रनाथ टैगोर वाला, आप में से कई बच्चे ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर पर भरोसा नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने बदाना पल्ले में आके बंगाल से ट्रांसलेशन किया होगा। यू डिड नॉट वांट टू चूज और बिलीव दिस फैक्ट, बट काउंटर इंट्यूटिवली दैट वाज करेक्ट। सिमिलरली आर्टिकल 109, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है, यू वुड नॉट बी इंक्लाइंड टू बिलीव इट,
ठीक है, एंड दैट्स द प्रिसाइज रीजन हियर, दैट्स द प्रिसाइज रीजन इस फैक्ट के करेक्ट होने के चांसेस तो ज्यादा है। हमें अगर हम रिस्क लेंगे, विल टेक दैट रिस्क इन फेवर ऑफ आर्टिकल 109। शुरुआत में गाइस थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है सुनने में, बट दिस इज लेवल 3 एलिमिनेशन। प्रैक्टिस के साथ ही आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे, ठीक है, और आपका ज्यादा कमांड इस पर बनेगा। अब गाइस आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स एंड देन विल बी मूविंग अहेड गाइस based on these learnings, level 1, level 2, level 3. I have crafted questions not just for today but in the subsequent classes as well. That distinction between level 1, level 2 and level 3 elimination आपको समझ में आए और आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके इंटरनलाइज कर पाओ, उस तरीके से आज का सेशन और अगले सेशन फ्रेम किए गए हैं, प्लान किए गए हैं। नाउ आई विल बी टेकिंग अप योर डाउट्स।